Assalamu alaikum, sir. My name is Atif and I am student of Thal Public School. Sir, please explain the concept of floating and sinking of object with reference to density. Thank you, sir. Bismillahir Rahmanir Rahim. Thank you, Atif. Your question is very simple and very easy and very interesting. You will understand it very easily and quickly. You want to understand the floating and sinking of objects with reference to density. So, first, understand what is density. The density is how much mass is packed in a given space or in a given volume. Okay. Now, if you compare, now listen the definition again. How much mass is packed in a given space or in a given volume? Now tell me, you have a brick. You have seen bricks. You have a brick. You know the size of the brick is 9 inch by, I think, 3 inch and 3.5 inch, something like this. So this is the dimension of a brick. And when you hold it, when you pick it up, when you lift it, it feels heavier. And now take sponge. Sponge. You have sponges in your classrooms with which you sometimes clean the whiteboards. You take the sponge of the same size, the size of the brick. Its length is same, 9 inch. Its width is same, 3 or 4 inch, and height is also the same as that of brick. But when you lift it, it feels lighter. Now you see, there's one thing which is same, that is the size of the brick and size of the sponge. The space which brick occupies is exactly equal to the space which sponge occupies. But what is mass of the brick? Maybe 2 kilogram. But what is mass of the sponge? Maybe 0.5 kilogram or 0.2 kilogram. Very light. So mass of sponge is less than the mass of brick of the same size. So whose density is more? What is density? Density is, I have told you, it is the amount of stuff packed in a given space or in a given volume. When you divide mass by volume, you get density. So density is mass divided by volume, M divided by V. So this is, density is M divided by V, mass divided by volume. Now volume of the brick and the sponge is same, but mass is different. So therefore, density of both sponge and brick are different. Densities are different. The density of brick is more. How? If it is 2 kg, if the mass is 2 kg and the volume, how much is the volume? 9 inches by 3 inches by 3 inches. How much? 9 threes are 27, 23s are 81. 81 cubic inches. So 2 kg over 81 cubic inches. Now, this is the density of brick. Now, what is the density of sponge? Density of sponge is, how much is the mass? Maybe 0.2 kg, only 1 over 5 kg or 1 over 2 kg. So 0.2 kg divided by 81 square inch.
So which is the larger amount? 2 kg over 81 is larger than 0.2 kg over 81. So the density of brick is more than the density of sponge. Now, a magic number, water. What is the density of water? If you have 1 kg of water, if mass of water is 1 kilogram and its volume is 10 cubic centimeter or 1 cubic decimeter. 10 cubic centimeter means there is a container which is 10 centimeter wide, 10 centimeter long, and 10 centimeter high. So, if that container is filled with water, the mass of the water will be 1 kilogram. So, 10 centimeter by 10 centimeter by 10 centimeter. So, that is the container. That is, say, a mug or a glass or some container which has this volume, this space, 10 into 10 into 10. When it is filled with water, it will be 1 kg. If you weigh, the mass of the water will be 1 kg. So 1 kg divided by 10 into 10 into 10, 1000 cubic centimeter. 1000 cubic centimeter or 10 centimeters are equal to 1 decimeter. So 1 decimeter into 1 decimeter into 1 decimeter, 1 cubic decimeter. So 1 kg per cubic decimeter is the density of water. Or you can say 1 gram per cubic centimeter. Let me write it on the board. Let me quickly grab the markers. Okay. Mass over volume. Mass over volume is density. Okay. Now, the magic number I have told you is that the density of water is 1 kg per cubic decimeter. Cubic decimeter. That's how you write cubic decimeter. 1 kg per cubic decimeter. Or 1 gram per cubic centimeter. 1 gram per cubic centimeter. If you take a very small container, it is 1 centimeter wide, 1 centimeter long, and 1 centimeter high, or 1 centimeter deep. The water which it will contain will be 1 gram, 1 gram of water. And let me tell you that this cubic decimeter is how much? 1 liter. 1 liter. So 1 kg divided by 1 liter is 1 kg liter. That is, so the density of water is always 1. Because अगर 1 किलोग्राम पानी हो तो वो 1 लीटर की बोतल भर जाती है उससे. यानी 1 लीटर की बोतल जो है उसमें जितना पानी होता है वो 1 किलोग्राम होता है. इसलिए कहते हैं कि वाटर की डेंसिटी 1 है. 1 kg पर लीटर. 1 लीटर में 1 kg पानी आता है. ठीक है.
अच्छा, एक और भी इसकी है, अगर आप 1000 kg पानी लें तो ये कितनी स्पेस में आ जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा? 1000 kg पर how much cubic meter? 1 cubic meter. You know, we meter. If there is a container which is 1 meter long, 1 meter wide, and 1 meter high or deep, if that is filled, that is a drum, big drum, if that is filled, the mass of the water will be 1000 kg. So 1000 kg per cubic meter. This is the mass of this is the density of the water. 1000 kg per cubic meter or 1 gram per cubic centimeter or 1 kg per cubic decimeter. This 1 kg per cubic decimeter you will be able to comprehend more easily because cubic decimeter is 1 liter. 1 cubic decimeter is 1 liter. So 1 kg per 1 liter. It means 1 liter of water weighs or has the mass of 1 kg. Therefore, the density of water is 1. Density of water is 1. Now, why I say this is a magic number? The density of water is a magic number. Why do I say it? Because this is a reference point. This is a reference point. So everything gets compared to this number. We compare the density of everything with this number. Okay? Let me erase it and write it neatly. Let me write just one unit of density. Density of water. Density of water. Density of water. How much? 1000 kg per cubic meter. 1000 kilogram per cubic meter. This is the density of water. So this is a reference number. We compare density of everything with this. Now let me tell you simple rule. Simple rule. Let's understand now floating and sinking. If and you want to know the density of an object, whether it floats or sinks, how will you find out whether it floats or sinks? Now, object density if object density is smaller than water density, smaller than water density, object density is smaller than water density, which means that the object which you have put in the water has less density than the water, the object will float. Simple rule. If its density is smaller than or less than density of water, that object will float. Sponge will float on the water because its density is less than the density of water. It will float on the water. Now, what about brick?
which you use in building the walls or houses, brick, will it float or sink? What is the rule? The rule is object density if it is greater than water density. If the object density is greater than water density, it will sink. अगर पानी की डेंसिटी से ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है, अगर ईंट आप पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है. ऑब्जेक्ट डेंसिटी इज ग्रेटर देन वाटर डेंसिटी, तो दैट विल सिंक. मगर स्पॉन्ज जो है वो तैरता रहेगा. अब हम देखते हैं, अगर इक्वल हो जाए डेंसिटी ऑब्जेक्ट की और वाटर की, ठीक है, ऑब्जेक्ट डेंसिटी is equal to water density. What will happen? ना तो ये फ्लोट करेगा पानी की सरफेस पे, ना ये सिंक करेगा बॉटम पे. ये इन द मिडल ऑफ द वाटर, वो लिक्विड के बिल्कुल मिडल में सस्पेंड रहेगा, वहां पे मोलक रहेगा मिडल में. आप देखें, कुछ लकड़ियां ऐसी होती हैं, लकड़ियां भी डिफरेंट वेट की होती है ना. कुछ लकड़ियां ऐसी होती हैं, अगर एक लकड़ी का आप एक पीस, एक ब्लॉक आप पानी में फेंक दें, तो समटाइम्स ऐसे ब्लॉक होते हैं, ऐसी लकड़ी होती है जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के इक्वल होती है, तो वो बिल्कुल ना तो नीचे डूबता है, यानी बॉटम पे जमीन पे भी नहीं बैठता और सरफेस पे भी नहीं आता, बिल्कुल मिडल में रहता है. तो जब डेंसिटी बराबर होगी तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट स्टेज सस्पेंडेड इन द मिडल. ऑब्जेक्ट विल स्टे सस्पेंडेड इन द मिडल. ठीक है. अच्छा, ये क्यों होता है? ये जो फ्लोटिंग या सिंकिंग या सस्पेंशन इन द मिडल, ये क्यों होती है? आपने अगर एक टर्म सुनी हो, बुआयेंसी, BUOY बॉय, एक होता है BOY बॉय लड़का, यह है BUOY buoyancy. If you have heard this term, this is also called upthrust. Upthrust. This is the force upward. This is the upward push of the water on an object which is put in the water. अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप पानी में डालते हैं तो पानी नीचे से जो उसको ऊपर की तरफ पुश करता है, उस फोर्स को बुआयेंसी या अपथ्रस्ट कहते हैं. ठीक है. दैट फोर्स इज कॉल्ड बुआयेंसी और अपथ्रस्ट. अच्छा, जो वाटर है, वाटर एक्चुअली रेजिस्ट करता है डिस्प्लेसमेंट को. वो कहता है कि मेरी जगह कोई ना ले. अब आप देखें ना, जब आपने एक ईंट, एक ब्रिक को पानी में डाला, तो वो जब पानी के अंदर गई तो उसने जहां पे पानी था वो खुद वहां पे चली गई. इसका मतलब वो जिस जगह पे पानी था वो जगह उसने ले ली और उस पानी को उसने वहां से हटा दिया. अब जितना पानी उसने वहां से हटाया है, अगर तो उस पानी का वजन, उसका मैस उस ईंट से ज्यादा होता
तो ईंट को पानी ने ऊपर उठाए रखना था। यानी जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया है, ईंट जब गई है अंदर, उसने अब ईंट का वॉल्यूम, ईंट का आपने देखा है ना कि 9 इंच बाई 3 इंच बाई 3 इंच, ये उसका वॉल्यूम है। इसका मतलब इतनी पानी की जगह उसने ली, उतना पानी उसने वहां से हटा दिया। अब उसने जितना पानी वहां से हटाया है, अगर उसका वजन ईंट के वजन से ज्यादा होता तो ईंट सिंक नहीं कर सकती थी, तो वो फिर अप थ्रस्ट बॉयंसी वाटर की बढ़ जानी थी। ईंट जो है उसका जो मैस है, जितना वाटर उसने डिस्प्लेस किया है उससे ज्यादा है, इसलिए वो डूब गई। ठीक है, स्पॉन्ज क्यों नहीं डूबा? अब स्पॉन्ज भी तो है ना, जिसने पानी के ऊपर आया है। ईंट जितना ही बड़ा है वो साइज में, मगर वो इसलिए नहीं डूबा कि जितना पानी वो डिस्प्लेस कर सकता है, उस पानी का वजन स्पॉन्ज के वजन से ज्यादा है, उसका मैस उससे ज्यादा है, तो उसकी बॉयंसी वाटर की ज्यादा है, अप थ्रस्ट ज्यादा है, तो इसलिए उसने उसको ऊपर अपने रखा हुआ है। ठीक है, तो ये होती है बॉयंसी। अब बात यह है कि एक पैराडॉक्स आपको नजर आता है। आपने शिप देखे हैं बड़े बड़े, जो स्टील के बने हुए हैं। आपको पता है कि स्टील की डेंसिटी पानी से कितनी ज्यादा होती है? मैं बताता हूं। 1 लीटर मैंने कितना बताया था? 10 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई। ये जो एक स्पेस घेरी है किसी ब्लॉक ने, जिसका साइज 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर है, ये 1 लीटर है। ठीक है, 1 लीटर वॉल्यूम है ये, 10 बाई 10 बाई 10 सेंटीमीटर, या 1 डेसीमीटर बाई 1 डेसीमीटर बाई 1 डेसीमीटर। ये 1 लीटर, अगर ये बर्तन एक हो और इसमें पानी डालें तो वो 1 kg होगा। मगर अगर इस बर्तन को भर दें हम आयरन के साथ, स्टील के साथ, तो पता कितना वजन होगा? 7.8 kg, तकरीबन 8 kg, पानी से 8 गुना ज्यादा। तो वो स्टील तो पानी में डूब जाएगा फिर, क्योंकि स्टील जो है उसकी डेंसिटी पानी से बहुत ज्यादा है। यानी जितना पानी का वॉल्यूम है उतना ही स्टील का वॉल्यूम है। पानी जो है वो भी 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर है, यही वॉल्यूम पानी का है। इतना ही वॉल्यूम स्टील का है, मगर पानी का 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर पानी हो तो 1 kg होगा। स्टील जो है वो 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, तकरीबन 8 kg होगा। तो अब वाटर 1 kg है, वो 8 kg है। जितनी वॉल्यूम दोनों का एक जैसा है, मगर वजन मैस स्टील का ज्यादा है, तो स्टील डूब जाएगा। तो ये मुझे ये यहां पे एक अनोमली, एक पैराडॉक्स नजर आता है, जरा आप हल करें कि ये जो शिप है स्टील का बना होता है इतना बड़ा, ये क्यों नहीं डूबता? अगर स्टील जो है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से 8 गुना ज्यादा है। ये देखो ना, मैंने लिखा था यहां पे कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी वाटर से तो वो डूब जाएगा। ठीक है, अब स्टील की डेंसिटी जो है वो ज्यादा है वाटर की डेंसिटी से, तो स्टील डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। मगर शिप जो है वो तो स्टील का बना होता है, वो क्यों नहीं सिंक करता? उसकी डेंसिटी तो वाटर से 8 टाइम्स ज्यादा है, 7.8 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, वो क्यों नहीं डूबता? वो इसलिए नहीं डूबता कि जो शिप है वो कोई सॉलिड स्टील का ब्लॉक नहीं है। शिप की आप वॉल्स देखें, दीवारें बनी हुई, और दरमियान में सारा कुछ वो स्टील का भरा हुआ नहीं है। वो दरमियान में तो उसके सारा खाली है, वो तो एयर है। उसके अंदर, शिप के अंदर कमरे बने हुए हैं खाली, कमरों में कोई सामान रखा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं। तो उसकी अगर तो वो सारा जितना भी वो शिप है सारा स्टील से भरा होता, स्टील का ब्लॉक होता पूरा, तो फिर तो उसकी डेंसिटी जो थी वो वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होनी थी। मगर ये स्टील जो है ये पूरा ब्लॉक नहीं है,
ये स्टील जो है, ये शिप जो है, इसकी वॉल्स हैं ऊपर तक, दरमियान में सारा खाली है। अगर दरमियान में सारा भरा होता, ब्लॉक होता पूरा ये, तो फिर इसका वॉल्यूम वाटर के वॉल्यूम के बराबर होना था ना। तो इसलिए जब हम ये देखते हैं, डेंसिटी को कंपेयर करते हैं कि ये फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, तो हम पूरे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, सिर्फ उस मटेरियल को नहीं देखते जिससे वो ऑब्जेक्ट बना होता है। अब शिप बना हुआ तो स्टील का है, और स्टील की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, तो शिप को तो डूब जाना चाहिए था। नहीं, हमने स्टील को नहीं देखा, हमने उस ऑब्जेक्ट को देखा है जो स्टील से बना हुआ है। क्या उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है? नहीं, क्योंकि वो अंदर से खाली है। उसका मैस जो है, जितना उसने पानी नीचे डिस्प्लेस किया हुआ है, वो पानी का मैस ज्यादा है उसके मैस से, शिप के मैस से पानी का मैस। अगर शिप जो है वो 1,00,000 केजी उसका वजन है, तो उसके नीचे जो पानी है, हो सकता है उसका वजन 1,50,000 केजी हो, क्योंकि शिप दरमियान से खाली है। अगर वो पूरा स्टील का ब्लॉक होता, जितना बड़ा शिप है, तो फिर वो डूब जाना था। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि हम पूरा उसको लेते हैं, ऑब्जेक्ट को, हम उस सिर्फ मटेरियल को नहीं लेते जिस मटेरियल से वो बना होता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ फिगर्स यहां पे देना चाहता हूं आपके कंपैरिजन के लिए, कि आपको ये तो पता है कि जो वाटर है, वाटर जो है, वाटर की डेंसिटी मैंने आपको क्या बताई थी, 1000 केजी पानी आ जाता है एक ड्रम में, और वो ड्रम होता है क्यूबिक मीटर, यानी 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ही लंबा। इतना बड़ा ड्रम हो तो उसमें जो पानी आता है वो तो 1000 केजी, यानी मैस ओवर वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम, ये होगी डेंसिटी। ये मैस है, ये वॉल्यूम है, ये डेंसिटी होगी वाटर की। अब वुड, जो जनरल आम वुड होती है, उसकी जरा डेंसिटी देखते हैं कितनी होती है। वुड की डेंसिटी होती है 600 केजी पर क्यूबिक मीटर। अब जो वुड है, अगर एक जितना बड़ा ड्रम है जिसमें पानी से भर दिया उसको आपने, अगर एक वुड है, वो भी 1 मीटर उसकी लेंथ है, 1 मीटर ही विड्थ है, और 1 मीटर ही उसकी हाइट है, इतना बड़ा वो ब्लॉक है, तो उसका मैस 600 केजी होगा, 600 केजी पर क्यूबिक मीटर। ये भी पर क्यूबिक मीटर, ये पर क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम सेम है, क्यूबिक मीटर, मगर वुड का मैस कम है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ये तैरती रहेगी। वुड जो है ये फ्लोट करेगी, सिंक नहीं करेगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है। आगे आते हैं आइस, बर्फ। आपने कभी गिलास में पानी डाल के ठंडा करने के लिए बर्फ फ्रिज से डाली है? डाली होगी। आपने देखा होगा कि वो कुछ ऊपर होती है, कोई थोड़ी सी अंदर होती है, वो ऊपर तैरती है। क्यों? उसकी डेंसिटी कम होती है, वो है 970 केजी पर क्यूबिक मीटर। अगर 1 क्यूबिक मीटर का आइस का ब्लॉक हो तो उसका वजन 917 केजी होता है, जबकि वाटर 1000 केजी है, इसलिए ये ऊपर तैरती रहती है। नहीं अगर देखी तो ग्लास में फिर आप बर्फ डाल के देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, फिर हम आते हैं प्लास्टिक के ऊपर। प्लास्टिक, ये प्लास्टिक के लिफाफे जो है, इनकी बात नहीं मैं करता, ये जो दूसरा प्लास्टिक होता है ना, उसका एक ब्लॉक अगर प्लास्टिक का हो, बिल्कुल इसी साइज का, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ही उसकी हाइट हो, तो उसका वजन होता है 1050 केजी, 1050 केजी पर क्यूबिक मीटर। अब मुझे बताएं, 1050 केजी ज्यादा है कि 100 केजी ज्यादा है? ये ज्यादा है। इसका मतलब प्लास्टिक की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। इसका मतलब है ये ब्लॉक जो है प्लास्टिक का, ये सिंक कर जाएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से
ज्यादा है, ये डूब जाएगा, ये सिंक कर जाएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी उसकी डेंसिटी से ज्यादा है। अब आते हैं लोहे पे, आयरन। आयरन आयरन जो होता है 1 क्यूबिक मीटर, अगर आप आयरन का ब्लॉक लें, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, पूरा भरा हुआ, दरमियान से खाली नहीं है, पूरा सॉलिड ब्लॉक है आयरन का, उसका वजन पता कितना होता है? 7,800 kg पर क्यूबिक मीटर। 7,800 kg पर क्यूबिक मीटर। 7,800 kg ज्यादा है कि 1,000 kg ज्यादा है? ये ज्यादा है, तकरीबन 8 गुना ज्यादा है। तो कौन ये फिर सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा? ये सिंक कर जाएगा, ये सिंक कर जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस डेंस देन द लिक्विड इट इज प्लेस्ड इन, जिस लिक्विड में हमने उसको डाला है, उस ऑब्जेक्ट को, अगर तो वो उससे लेस डेंस है, इट विल फ्लोट। ठीक है, अगर तो ऑब्जेक्ट इज लेस डेंस देन द लिक्विड, इट विल फ्लोट। बट इफ इट इज मोर डेंस देन द लिक्विड, इट विल सिंक। तो ये सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। तो उम्मीद है आतिफ आपको फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद रेफरेंस टू डेंसिटी समझ आ गई होगी कि डेंसिटी का क्या रिलेशनशिप है फ्लोटिंग से और सिंकिंग से, ऑब्जेक्ट्स के तैरने से और डूब जाने से डेंसिटी का क्या ताल्लुक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मुझे इजाजत दें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।